Hello everyone. Today we will discuss about the bright field microscopy. Bright field microscopy is the conventional technique. It is suitable for observing the natural colors of a specimen or the observation of a stained sample. The specimen appears darker on a bright background. जो specimen जो होता है इसमें क्या होता है bright background होता है उस पर dark color का appear होता है. Bright field observation is widely used for stained or highly contrasted specimen mounted on a glass microscope slide. Parts of a bright field microscopy. The first part is the eyepiece lens, the lens from which we have to be seen. Next is ocular lens, then nose piece, and after that objective lens, stage, condenser, iris diaphragm, coarse and fine adjustment knobs, and light source. Here is our eyepiece and it is the eyepiece lens. This is the objective and this is the objective frame, coarse focus and fine focus. For coarse focus and fine focus, this is the adjustment box and this is illumination intensity knob, and this is the base of the microscope, illumination system, iris diaphragm, condenser, stage, nose piece, objective turret, and this is the head. After that, lens system. The microscope consists of three lens system, namely condenser lens system, ऑब्जेक्टिव लेंस सिस्टम एंड ऑकुलर लेंस सिस्टम. जो माइक्रोस्कोप है उसमें तीन लेंस सिस्टम है और वो जो तीन लेंस सिस्टम है उनके अंदर आता है कंडेंसर लेंस सिस्टम, ऑब्जेक्टिव लेंस सिस्टम एंड ऑकुलर लेंस सिस्टम. कंडेंसर लेंस सिस्टम इट इज़ लोकेटेड अंडर द स्टेज. जो कंडेंसर लेंस सिस्टम है वो स्टेज के नीचे है, इसलिए हम उसको बोलते हैं सब स्टेज कंडेंसर. Condenser lens system, it is located under the stage and is also called the sub-stage condenser. एक कंडेंसर में भी डिफाइंड एज द सीरीज ऑफ लेंसेज जो लाइट को इकट्ठा कर लेंगे कहाँ से, लाइट सोर्स से, और कंसनट्रेट करेंगे स्पेसिमेन पे. तो कंडेंसर के अंदर वो लेंस है सारे के सारे जो लाइट जहाँ से भी आ रही है सबको इकट्ठा करेंगे एंड देन इकट्ठा करके स्पेसिमेन के पास भेज देंगे. एक एडजस्टेबल मल्टी लीफ आइरिस डायफ्राम इज लोकेटेड इन द कंडेंसर. The diaphragm control the diameter of the light leaving the condenser in striking the specimen. By adjusting the opening of the diaphragm, one can reduce glare and increase the clarity of image. A diaphragm openly full result in excessive illumination and glare. One that is fully closed decreases the resolution of the specimen by reducing the numerical aperture of the objective. One that is fully closed decreases the resolution of the specimen by reducing the numerical aperture of the objective. Types of condenser use. The chromatic condenser, such as Abbe, when no attempt is made to correct for the spherical or chromatic aberration. It contains two lenses. इसके अंदर दो lenses होएंगे जो produce करेंगे image of the light so that is surrounded by blue and red color as it edges. उसके बाद होता है हमारा aplenetic condenser जो कि हम correct कर सकते हैं by using for spherical aberration. कंपाउंड एक्रोमेटिक कंडेंसर जिसको स्पेरिकल और क्रोमेटिक एबरेशन करके हम करेक्ट कर सकते हैं. उसके बाद आता है एल्यूमिनेशन ऑफ लाइट. तो क्रिटिकल एल्यूमिनेशन, एन इमेज ऑफ द लाइट सोर्स फिलामेंट इज फोकस्ड ऑन द स्पेसिमेन विद द सब स्टेज कंडेंसर टू प्रोड्यूस ब्राइट एल्यूमिनेशन ऑफ द स्पेसिमेन. क्रिटिकल एल्यूमिनेशन में क्या होगा कि इमेज जो होगी लाइट सोर्स फिलामेंट की फोकस्ड होगी स्पेसिमेन पे. जैसे कि आप देख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट प्लेट है, ये इमेज प्लेन है, ये पाइपलाइन है. एंड इसके अलावा होता है क्लोर एल्यूमिनेशन. इसके अंदर जो फिलामेंट होगा लाइट सोर्स का फोकस्ड होगा आइरिस के डायग्राम पे बाय द कंडेंसर अटैच्ड टू द माइक्रोस्कोप लैम्प. द पोजीशन ऑफ द सब स्टेज कंडेंसर लेंस इज एडजस्टेड सो एज टू form an image of the field diaphragm in the plane of the specimen. The field diaphragm is then opened or closed to reduce any spurious light, result in even illumination of the specimen. Here, color illumination. After that, objective lens system. Objective lens system is one that is present near the sample. It is very high power magnifying glass which has very short focal length. ऑब्जेक्टिव लेंस वो है जो सैंपल के पास प्रेजेंट है, इसकी मैग्नीफाइंग पावर वो ज़्यादा होगी, पावर ज़्यादा है तो फोकल लेंथ, क्योंकि पावर और फोकल लेंथ में रिलेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का होता है.
Microscope objectives are categorized by two parameters. First of microscope objectives by magnification and then by numerical aperture. The magnification typically range from 4 to 100x. It means they can enlarge the object by 4 to 100. It is combined with the magnification of the eyepiece to determine the overall magnification of the microscope. Numerical aperture for microscope lens. Numerical aperture for microscope lens typically range from 0.10 to 1.25 corresponding to focal length of about 40 mm to 2 mm respectively. तो हमने इसमें ये देखा कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो ज़्यादा पास होना चाहिए सैंपल के, और ऑब्जेक्टिव लेंस जिसकी पावर है बहुत ज़्यादा होनी चाहिए. अगर हाई पावर का है तो उसकी शॉर्ट फोकल लेंथ होगी, तो ये पावर और फोकल लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्टिव कैसे हम कैरेक्टराइज करेंगे कि माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्टिव है दो पैरामीटर से. पहला पैरामीटर रहेगा कि उसकी मैग्नीफिकेशन कैसी होगी, दूसरा न्यूमेरिकल अपर्चर कैसा रहेगा. तो कितना मैग्नीफाई कर रहा है वो, तो वो हमारे ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई बड़ा कर रहा है, एनलार्ज कर रहा है 4 से 100x के बीच में. और अगर आई पीस ऑल ओवर मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हैं. ऑल ओवर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीप्लाई मैग्नीफिकेशन ऑफ इमेज. न्यूमेरिकल अपर्चर 0.10 से 1.25 रहती है. A typical microscope has 3 to 4 objective held in a resolving nosepiece attached to a body tube. The main function is to magnify the object. Primary magnification. Usually 3 objectives are used: 10x, 45 to 40x and 100x. A typical microscope has 3 to 4 objectives. जो टिपिकल माइक्रोस्कोप होता है उसके पास 3 से 4 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं नोज पीस को रिजॉल्व करने में. जो इनके फंक्शन है वो फंक्शन होता है मैग्नीफाई करना ऑब्जेक्ट को. 10x जो होता है लो पावर ऑब्जेक्टिव के लिए होता है, 40 to 45x होता है हाई पावर के लिए, एंड 100x को यूज़ करते हैं ऑयल इमर्जन हाई पावर ऑब्जेक्टिव के लिए. नेक्स्ट है हमारा ऑकुलर लेंस सिस्टम. इट इज़ माउंटेड ऑन ए बॉडी ट्यूब. देयर आर 2 लेंसेज इन एन आई पीस. एक तो होता है आई लेंस, दूसरा होता है ऑकुलर लेंस. तो अगर मैं ऑकुलर लेंस सिस्टम की बात करूं तो यहाँ पे बॉडी ट्यूब पे माउंटेड होता है एंड इसके पास 2 लेंस होते हैं, एक आई लेंस एंड ऑकुलर, एंड नेक्स्ट होती है फील्ड लाइंस. फील्ड लाइंस फोकस करती है प्राइमरी इमेज को. Field line focuses the primary image formed by the objective in between the lens and focus point of the eye lens. Eye lens help in secondary magnification. Usually eyepiece of 10x is used. The most commonly used eyepiece is the Huygens eyepiece. So it is mounted on a body tube. There are 2 lenses in an eyepiece. एक तो होता है आई लेंस, दूसरा होता है ocular lens. तो फील्ड लेंस फोकस कर रहा है प्राइमरी इमेज पे, फील्ड लेंस फोकस कर रहा है प्राइमरी इमेज पे जो ऑब्जेक्टिव बना रहा है, और आई लेंस फोकस कर रहा है सेकेंडरी इमेज पे. फंक्शन क्या है इसका कि ये मैग्नीफाई करता है इमेज को जो बन रही है ऑब्जेक्टिव से और करेक्ट करता है जो डिफेक्ट आ रहा है ऑब्जेक्टिव में. तो व्हाट इज द टोटल मैग्नीफिकेशन? इमेज ऑफ ए स्पेसिमेन illuminated by a lamp or by light reflected by a mirror pass through the objective lens and body tube to the second set of magnifying lens, the ocular lens. The image of a specimen. जो स्पेसिमेन की इमेज थी जो कि एलिमिनेट हुई थी लैम्प से और जो लाइट रिफ्लेक्टेड करी थी मिरर ने, वो क्या जाएगी ऑब्जेक्टिव लेंस के पास जाएगी, बॉडी ट्यूब के पास जाएगी और उसको मैग्नीफाई कर देगा. टोटल मैग्नीफिकेशन जो होती है स्पेसिमेन की वो हम देख सकते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप से. टोटल मैग्नीफिकेशन ऑफ स्पेसिमेन सीन थ्रू कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज डिटरमाइंड बाय मल्टीप्लाइंग करने हमें मैग्नीफिकेशन दोनों ऑकुलर और ऑब्जेक्टिव लेंस के. फॉर एग्जांपल an objective lens with magnification of about 40x used in combination with ocular lens and magnification of 10x produce a total magnification of 400x. मैग्नीफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव मल्टीप्लाई में ऑकुलर किसकी इक्वल होता है टोटल मैग्नीफिकेशन के इक्वल होता है 40 मल्टीप्लाई में 10, 400 टाइम्स जो आती है इनकी मैग्नीफिकेशन आती है. तो टोटल मैग्नीफिकेशन क्या रहेगी इनकी 4x मल्टीप्लाई में
10x बन जाएगी हमारी 40x, 10x मल्टीप्लाई में 10x जो बन जाएगी 100x एंड 40x मल्टीप्लाई में 10x कितनी बन जाएगी, वो भी 400x जो है वो फॉर्मेशन हो जाएगी। प्रिंसिपल ऑफ ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, द लाइट पासिंग थ्रू द कंडेंसर। अब प्रिंसिपल क्या रहेगा ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप का, जो लाइट पास हो रही है कंडेंसर से, the object placed between f and 2f of the objective and the objective forms a real magnified and inverted image। तो लाइट पास हो रही है कंडेंसर से और जो ऑब्जेक्ट रखा है हमने वो f एंड 2f के बीच में रखा है और जो इमेज बन रही है वो बन रही है रियल मैग्नीफाइड एंड इन उल्टी डायरेक्शन में बन रही है। प्राइमरी इमेज इज देन ब्रॉट इनटू फोकस between lens and f of eye lens by field lens. The eye lens magnify the image and forms a virtual, magnified and inverted image. The magnification formed by objective is called primary magnification and that formed by the eyepiece is called secondary magnification. जो लाइट पास होएगी कंडेंसर से ऑब्जेक्ट के पास जाएगी, जो कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एफ एंड 2f लेंस के फोकस पे और 2f ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। अब इससे होगा क्या, जैसे कि मान लीजिए ये मेरा ऑब्जेक्ट है, कंडेंसर के थ्रू लाइट आ गई एंड ऑब्जेक्ट मान लीजिए मैंने यहाँ रख दिया, ये f है एंड ये 2f है। इसको थोड़ा सा और क्लियर करके बनाती हूँ। दिस इज अवर लेंस, ये लेंस का है फोकल पॉइंट, ये है हमारा 2f एंड हम ऑब्जेक्ट इनके बीच में रखा है। अगर मैं इमेज की बात करूँ, एक तो जो पैरेलल होती है वो 2f फोकस से चली जाती है, एक यहाँ से जाएगी और यहाँ से वापस हो जाएगी, मतलब कुछ यहाँ पे इमेज बन जाएगी। अब इससे बड़ी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, लार्ज इन साइज बन रही है। अब फिर यहाँ से जब ये जाएगी हमारी उसके पास, क्या कहते हैं, जो मैग्नीफिकेशन के ऑब्जेक्टिव के कारण उसको हम बोलते हैं प्राइमरी मैग्नीफिकेशन एंड फिर जो आईपीस उसको और मैग्नीफाई कर देगा उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी मैग्नीफिकेशन। Important terms, resolving power of an objective may be defined as the ability of a microscope to distinguish two clearly objects placed as a separate and distinct entities। मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, इसमें दो ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल ऐसे ऐसे पड़े हैं, तो इनको अलग अलग शो करना, मतलब अलग अलग शो, मतलब कि माइक्रोस्कोप से देख रहा तो अलग अलग दिख पा रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिजॉल्विंग पावर, की दो बिल्कुल पॉइंट ऑब्जेक्ट्स को कितना अलग अलग सेपरेट करके दिखा पा रहे हैं। जितनी छोटी वेवलेंथ होगी उतनी ही ज़्यादा रिजॉल्विंग पावर होगी, क्योंकि रिजॉल्विंग पावर इज 0.6 रिजॉल्विंग पावर जो होती है गाइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होती है। अगर वेवलेंथ छोटी होगी तो रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होगी। Numerical aperture is defined as the ratio of diameter of the lens to its focal length। तो न्यूमेरिकल एपर्चर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, रेशियो जो है डायमीटर ऑफ द लेंस डिवाइड बाय इट्स फोकल लेंथ। तो रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ द लेंस डिवाइड बाय इट्स फोकल लेंथ। न्यूमेरिकल एपर्चर इज द लाइट गैदरिंग कैपेसिटी ऑफ द लेंस। जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल एपर्चर होगा उतनी ही ज़्यादा वो लाइट को गैदर करेगा। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैरीज विद द मीडियम यूज्ड बिटवीन द लेंस एंड द स्पेसिमेन। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी करता है कि आपने किस टाइप का लेंस यूज़ किया है। एयर इज जनरल सराउंडिंग मीडियम, और हमारे लेंस के सराउंडिंग में जो एयर होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 रहता है। ऑयल हम इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज इट हैज़ द सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज ग्लास विच प्रिवेंट लॉस ऑफ लाइट ड्यू टू बेंडिंग ऑफ लाइट रेज एज इट पास थ्रू इट। ऑयल हम इसलिए यूज़ करते हैं मीडियम की तरह क्योंकि ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग सेम होता है हमारे जो लेंस है ग्लास है उसकी तरह, तो इसलिए बेंडिंग कम रहेगी एंड रेजोल्यूशन ज़्यादा दिखेगी। इसलिए जब भी हम 100x पे देखते हैं हमें रेजोल्यूशन ज़्यादा चाहिए होती है एंड हम यूज़ करते हैं ऑयल का, क्योंकि ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है ग्लास की तरह, जो बचाता है लाइट को बेंड होने से जब उसके थ्रू पास होती है। तो वर्किंग ऑफ ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, light is first emitted by light source and is directed by the condenser on the specimen। सबसे पहले तो लाइट सोर्स से इमिटेड होएगी, देन कंडेंसर के पास चली जाएगी, फिर वो स्पेसिमेन के पास भेज देगा। लाइट फ्रॉम द स्पेसिमेन देन
पास थ्रू द ऑब्जेक्टिव लेंस। अब जो स्पेसिमेन के पास लाइट आई वो पास होगी ऑब्जेक्टिव लेंस से। फर्दर लाइट रेज आर पास टू ए प्रोजेक्टर लेंस। फिर लाइट रेज कहाँ जाएगी? प्रोजेक्टर लेंस के पास जाएगी, विच रिजर्व देयर डायरेक्शन सो दैट when the image reaches the eye it will not appear upside down। उसके बाद जो लाइट होगी वो प्रोजेक्टर लेंस के पास चली जाएगी, जो रिजर्व बचाएगा इनके डायरेक्शन को, ताकि जब इमेज जाए आई के पास तो वो क्या अपीयर हो? अपसाइड डाउन अपीयर हो। नोट ऑल माइक्रोस्कोप हैव ए प्रोजेक्टर लेंस। सारे के सारे माइक्रोस्कोप के पास प्रोजेक्टर लेंस नहीं होता है। सो द व्यूअर में बी सीइंग ए रिवर्स इमेज। सब माइक्रोस्कोप के पास प्रोजेक्टर लेंस नहीं होता है, तो इसलिए हो सकता है हमें रिवर्स इमेज भी दिखाई दे। In these cases, when the slide is moved, it is appear to moving in the opposite direction to the viewer. Light rays then travel to the ocular lens where it magnifies the magnified image an additional 10 times. The image is then produced in the eye। तो लाइट रेस ट्रेवल करिए ऑकुलर लेंस के पास, वहाँ पे वो मैग्नीफाइड करिए इमेज को 10 टाइम्स। उसके बाद इमेज जो है प्रोड्यूस हो रही है आई के अंदर। दैट इज़ द वर्किंग ऑफ ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। अभी जो मैंने आपको बताया मैं इस डायग्राम के थ्रू शो करती हूँ। ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप में क्या था, हमारे पास लाइट सोर्स है जो कंडेंसर के पास जा रहा है। कंडेंसर का काम होता है जो भी लाइट आ रही है उन्हें कलेक्ट करके स्पेसिमेन के पास भेजना। अब स्पेसिमेन के पास जो लाइट है वो जाएगी ऑब्जेक्टिव लेंस के पास। ऑब्जेक्टिव लेंस के पास हमारी लाइट जाएगी आई पीस लेंस के पास, एंड आई पीस के पास हमें आई हम ऑब्जर्व देख सकते हैं। तो ये था ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप के बारे में। जैसे मैंने आपको इसमें दिखाया कि सबसे पहले लाइट सोर्स है, देन कंडेंसर लेंस है, स्पेसिमेन है, ऑब्जेक्टिव लेंस, ये प्रोजेक्टर लेंस उसको रिवर्स कर देगा, देन हमें फाइनल इमेज दिख जाएगी। इसके बाद है फोर्थ, लो पावर ऑब्जेक्टिव यूजिंग कनकेव मिरर टू डायरेक्ट लाइट सोर्स। लो पावर ऑब्जेक्टिव के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? हम यूज़ कर सकते हैं कनकेव मिरर। किसके लिए? लाइट सोर्स को डायरेक्ट करने के लिए। कोई कनकेव मिरर का नेचर होता है कन्वर्जिंग, ये कन्वर्ज कर देगा लाइट सोर्स को। लॉवरिंग द कंडेंसर, क्लोजिंग द डायफ्राम ऑफ द कंडेंसर। हाई पावर के लिए हम कंडेंसर को ऊपर उठा सकते हैं, डायफ्राम को थोड़ा सा खोल सकते हैं, कनकेव मिरर तो यूज़ करेंगे इसे। और ऑयल इमर्जन हम क्यों यूज़ करते हैं? इसमें प्लेन मिरर यूज़ करेंगे ताकि डायरेक्ट लाइट आए। रेजिंग करिए कंडेंसर को, ओपनिंग द डायफ्राम कम्प्लीटली ताकि पूरी पूरी लाइट चली जाए। ड्रॉप ऑफ ऑयल प्लेस्ड ऑन द स्लाइड एंड ब्रिंगिंग द ऑयल इमर्सन लेंस टू मच ऑब्जेक्टिव फोकस। उसके बाद ट्रैपिंग इन ऑफ एयर शुड बी अवॉइडेड, कि एयर में वो ट्रैप नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग सेम करना है। एबरेशंस, एबरेशन कॉज द इमेज formed by a lens to be blurred or distorted। अब एबरेशन से क्या होगा? जो भी इमेज बन रही है लेंस से वो ब्लर्ड हो जाएगी या फिर डिस्टॉर्टेड हो जाएगी। It occurs when light from one point of an object does not converge into or not diverge from a single point after transmission through the system। ये एबरेशन होता कब है? कि तब होता है जब लाइट एक पॉइंट से ऑब्जेक्ट के एक पॉइंट से कन्वर्ज नहीं होती या फिर डाइवर्ज नहीं होती सिंगल पॉइंट पे, और वो ट्रांसमिशन हो जाती है। एबरेशन दो टाइप्स की होती है। वन इज मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक एबरेशन आर कॉज्ड बाय द ज्योमेट्री ऑफ लेंस और मिरर एंड अपीयर व्हेन यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनो एबरेशन वो एबरेशन होती है जो लेंस और मिरर का यूज़ करने पे होती है, और तभी होते जब मोनोक्रोमेटिक, मतलब वो लाइट जिसकी वेवलेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी सेम है। क्रोमेटिक एबरेशन आर कॉज्ड बाय डिस्पर्सन, द वेरिएशन ऑफ द लेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद वेवलेंथ दे डू नॉट अपीयर यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट इज यूज्ड। तो ये अपीयर नहीं होगी जब मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ करोगे। इसमें क्यों होती है? क्योंकि वेवलेंथ में अलग। Spherical aberration occur when light from a point on objective optical lens is more strongly refracted as the periphery or near the edge of the lens।
तो स्पेरिकल एबरेशन जब होएगी जब लाइट फ्रॉम ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, लाइट एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल एक्सिस पे स्ट्रांगली रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। कॉमा एबरेशन में क्या होगा, a lens aberration occurring in the part of the image field that is some distance from the principal axis of the system. It results from different magnification in the different various leaf zones. Astigmatism एक वो होता है जिसमें one rays that propagate in two perpendicular planes have different focal length. इसमें क्या होगा, रेस प्रोपेगेट करेगी दो परपेंडिकुलर प्लेन्स में और उनकी डिफरेंट फोकल लेंथ होएगी। एज अ रिजल्ट इमेज अपीयर स्ट्रेच इन वन डायरेक्शन, दिस इमेज हैज लैक शार्पनेस। डिसॉर्टेशन जब होगा जब फीचर्स लोकेटेड इन डिफरेंट डिस्टेंसेस फ्रॉम द ऑप्टिकल लेंस एक्सिबिट डिफरेंट मैग्निफिकेशन। डिफरेंट मैग्निफिकेशन होएगी इसके अंदर। कर्वेचर ऑफ द फील्ड इज ऑप्टिकल एबरेशन इन विच फ्लैट ऑब्जेक्ट नॉर्मल टू द ऑप्टिकल एक्सिस cannot be brought into focus on a flat image plane. जब लाइट फोकस हो जाएगी कर्व लेंस पे, इमेज प्रोड्यूस होगी लेंस के द्वारा, वो कर्व्ड हो जाएगी। उसके बाद क्रोमेटिक एबरेशन हम देख चुके हैं, फेलियर है लेंस की, फोकस सारे कलर्स को नहीं कर पा रहा सेम फोकल लेंथ पे। इट occurs because lenses have different refractive index for different wavelength of light. The refractive index decreases with increasing wavelength. दिस पॉइंट शुड बी रिमेंबर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होता है जैसे से वेवलेंथ इंक्रीज होती है। सो वॉयलेट ब्लू हैविंग स्मॉलर वेवलेंथ, वॉयलेट और ब्लू की वेवलेंथ कम है तो ये ज़्यादा रिफ्रैक्टेड होएगी एंड रेड की ज़्यादा वेवलेंथ तो ये कम रिफ्रैक्टेड होगा। Hence, violet are focused near to the lens and red away from the lens. There are two type of chromatic aberration, axial and transverse. तो axial aberration वो aberrations होती है when different wavelength of light are focused at different distances from the length. जो different wavelength है light की वो focused हो रही है different distances पे। तो axial aberration occurs when different wavelength of light are focused at different distance from the lens. ट्रांसफर एबरेशन अक्कर जब डिफरेंट वेवलेंथ फोकस्ड होएगी डिफरेंट पोजीशन फ्रॉम द फोकल प्लेन। तो थैंक यू सो मच गाइस।